हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीक रिएक्शन और मैं हूं नताशा कुरैश और मैं हूं आपका दोस्त और प्यारा सा होस्ट अकबर मिर्ज़ा। तो आज हम लाए हैं एक और रिएक्शन वीडियो। तो उस रिएक्शन वीडियो में देखेंगे कि क्या है और उसके ऊपर तफसीरें करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो व्यूअर्स, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है व्हाई सो मेनी CEOs आर फ्रॉम इंडिया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। Google, Adobe, Microsoft, and IBM are all run by people who grew up in India. The latest to join these ranks is Twitter CEO Parag Agrawal, who took over from Jack Dorsey. People originally from India make up 1% of the total US population, yet about 6% of Silicon Valley's workforce. So why are there so many tech CEOs who hail from India? When Satya Nadella took over as CEO of Microsoft in 2014, the company was in bad shape. Bill Gates was reportedly an angry and difficult boss. His successor, Steve Ballmer, apparently wasn't any better. Microsoft was also a dinosaur. It had failed to innovate. For example, it lost the smartphone battle to Apple. Along comes Nadella, an engineer who rose through the ranks of Microsoft to become the CEO. Nadella changed the culture of the company. He made it clear anger and yelling weren't welcome. He also sought to make Microsoft relevant. We now need to make Microsoft thrive in a mobile-first and a cloud-first world. Under his direction, Microsoft moved its software to non-Windows devices and expanded its cloud business, Azure. That innovative spirit of problem-solving was bred in his native country. India is home to nearly 1.4 billion people. It's the second most populous country on Earth after China and is expected to overtake China as the most populous country in a few years. Although India has made remarkable progress, poverty is still a major challenge. Nearly a quarter of the population lives below the poverty line of $1.90 a day, according to the United Nations Development Program. They face corruption, poor infrastructure, and limited opportunities. So they learn to be resilient, adapt, and overcome endless obstacles. This leads them to be problem solvers, a key asset in any corporation. Sundar Pichai has had to solve many problems after taking over at the helm of Google in 2015, at a time when big tech is being scrutinized over the power they hold. He became the archetype of a kinder, calmer, gentler leader in tech. Pichai earned an engineering degree at one of the Indian Institutes of Technology. The IITs are kind of like the Indian equivalent of MIT, with an even lower acceptance rate, reportedly of 1 or 2%. After Pichai graduated, his ticket to America came in the form of a master's at Stanford. Going to a top grad school in the States is how many Indians land up in the land of opportunity. They appear to follow this well-trodden path. They did their undergrad at a great school in India, got a master's in the US, where they studied STEM, science, technology, engineering, and mathematics. More than half of all international students in America pursued a STEM degree in the past academic year. American immigration favors people with specialized skills. After Pichai graduated, he went on an H-1B visa to work at consulting firm McKinsey. The H-1B allows American companies to employ foreign workers, many of whom are in IT-related fields. The US government awarded nearly 75% of these visas to Indians in 2020. In comparison, China trailed far behind in second, at 12%. The fact that so many Indians can speak English is a tremendous advantage in the West, and they're comfortable with American business culture, possibly because it mirrors the thriving IT industry back home in Bangalore, Chennai, and Hyderabad. They're also more likely to want to work overseas. 80% of Chinese international students return to China after graduating, according to China's Ministry of Education. Chinese entrepreneurs prefer starting their own companies at home. Alibaba is known as the Amazon of China. Tencent owns the messaging app WeChat, used by 1.2 billion people. Huawei is one of the giants of the tech industry. China's transition from a manufacturing hub to a tech hotbed has largely been driven by government policy. In the late 70s, Chinese leader Deng Xiaoping encouraged foreign businesses to set up offices in China, which fostered a startup environment. On the other hand, India has a problem of too much talent leaving the country for good. It has the highest number of migrants living abroad, at 17.5 million, according to the UN. And more Indians gave up their passports to become naturalized American citizens in 2020 than the Chinese, continuing the trend from past years. However, the brain drain from India may be starting to recede.
An increasing number of homegrown Indian startups are becoming unicorns, meaning the companies are valued at 1 billion or more. The data platform Traction tells Newsthink India created 47 unicorns in 2021, a significant jump from the 17 in 2020, and even less in years past. The tech ecosystem is being bolstered by powerful investment firms such as SoftBank that have been pumping money into Indian startups. But in order to entice more people to remain in their native country, salaries will have to catch up with those in the West. The average American tech worker earns around $98,000 a year, according to the online recruiting platform Dice. Tech salaries in India vary greatly, but the job site Indeed pegs the median salary at $20,000 US, going up to as much as $33,000, which makes them some of the top earners in their country, but still, far less than what they'd make in the States. As salaries grow along with India's startup boom, this could have implications for the number of exceptional individuals desiring to move abroad. The one thing that the CEOs of tech giants have in common is their strong background in engineering. If you wanted to improve your STEM skills, my sponsor Brilliant can help you achieve your goals. Brilliant is a website and app that lets you tackle math, science, and computer science concepts in a fun and hands-on way. You can develop your critical thinking skills through their recently updated logic course that forms the basis for mathematical reasoning. Or you can jump right into their popular mathematical fundamentals course to master algebra, logic, and number theory. There's something for everyone, whether it's the foundations of computer science or learning about cryptocurrency. If you're stuck on a question or get an incorrect answer, you can read the explanation to see where you went wrong. Brilliant is free to sign up if you head to the custom link in my description, brilliant.org/newsthink. And the first 200 of you to sign up with my link will receive 20% off Brilliant's annual premium subscription, which unlocks all of the courses. Thanks for watching. For Newsthink, I'm Cindy Palm. तो व्यूअर्स आपने देखा कि हम लोगों ने जो वीडियो देखी तो पहले तो बहुत हैरानकुन वीडियो है, मतलब कि इतने ज़्यादा सी की बात होती समझ आता। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादातर जो CEOs हैं वो हैं इंडियंस, और ये बहुत हैरानकुन बात है। हमें नहीं पता था इस बारे में, हमें नॉलेज भी नहीं थी कि इतने ज़्यादा CEOs जो इंडिया में। की नॉलेज थी कि इंडिया माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, हर चीज़ में बहुत अच्छा, IT में सबसे बेस्ट है, ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान आल्सो, मतलब IT में पाकिस्तान और चीज़ों में बहुत आगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि हम भी किससे कम हैं, हम भी बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में आगे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन IT जो डिपार्टमेंट है, IT जो फील्ड है, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? इसकी वजूहात पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपैरिजन की तरफ आते हैं नताशा, तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि वहाँ आपको पता है एजुकेशन बहुत हाई है माशाल्लाह से, ठीक है। दूसरी बात कि वहाँ पर प्राइमरी सेक्शन से ही कंप्यूटर पे कंसंट्रेशन दी जाती है। वहाँ पे बच्चों तक को सिखाया जाता है कि कैसे करना है, ऑन ऑफ करना, माउस पकड़ना, वो बच्चों को पेंसिल के साथ माउस पकड़ना भी सिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वहाँ की गवर्नमेंट की भी बात करूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करें तो भाई ठीक है, हाथ जुड़ गए दोनों के। वहाँ पे कंप्यूटर क्या, वहाँ पे जो किताब है वो ही नहीं पढ़ाई जाती, तो हम दूसरी चीज़ों पे कहाँ जाएं, ठीक है ना, ये चीज़ भी हटा दें। तो गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर की बुक ही नहीं रखी गई है, सही है, तो बच्चों को क्या पता होगा। बच्चे आजकल मोबाइल से ही आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जो भी कुछ है। और आप सोचिए अगर उनको प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, एक सब्जेक्ट ही फिक्स कर दिया जाए कंप्यूटर का, तो कितने ITs निकलेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर बात करें पाकिस्तान में, जहाँ तक मुझे भी नॉलेज है, कंप्यूटर पढ़ाई जाती है, बुक्स है, क्लास 1 से ही कंप्यूटर की बुक पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो चीज़ें यूज़ में नहीं नताशा, मैं आपकी बात से एग्री इसलिए नहीं करूँगा कि क्योंकि मेरा ताल्लुक भी टीचिंग की फील्ड से ही है, और जितने स्कूल्स मेरे पास पढ़ते हैं तो उनमें भी जो बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जिनकी फ़ीस हाई है, वो उन्होंने कंप्यूटर की बुक्स रखी हुई एज अ सब्जेक्ट, नॉट एज अ प्रैक्टिकल। कंप्यूटर प्रैक्टिकल है, सब्जेक्ट के तौर पे। और पुरानी चीजें, फ्लॉपी डिस्क का क्या ताल्लुक है भाई, जो बात है, ठीक है। अब लैपटॉप आपके सामने मौजूद है, लैपटॉप में हमने वीडियो देखी, लैपटॉप है, ठीक है। टैबलेट से इनका ज़माना है, वो अभी तक वो ब्लॉक वाले CPU रखे हुए हैं, ठीक है। वो मॉनिटर पुराने ज़माने का रखा हुआ है, स्कूल्स के अंदर दिखाते हैं, इसमें कलर भरें, इसमें ये करें, पेंटिंग्स करवाते हैं। प्रैक्टिकल की बात आ जाती है ना, तो बच्चों को ले जाएंगे लैब में और वहाँ पर जाके बच्चों से सिर्फ कलर पेंटिंग करवाएंगे वहाँ पे कि भाई इसमें पेंट करो,
इसमें आपने ग्राफ्स बनाना, ये सब चीज़ें सिखाते हैं। तो यार जो चीज़ प्रैक्टिकली जो हमें इन फ्यूचर हमें हेल्प कर सकती है, उस चीज़ के ऊपर हम क्यों कंसंट्रेट नहीं कर रहे? तो सीईओ क्या, डीपीसीओ, एमबीओ सब कुछ भी नहीं है पाकिस्तान से, उसकी वजूहात है। लेकिन कुछ अभी इंस्टीट्यूट खुले हैं, बहुत सारे नाम नहीं लूँगा, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। कराची की बात करूँ बिकॉज हम कराची से बिलोंग करते हैं। इतने आला तालीम दे रहे हैं वो, इतने आला तालीम दे रहे हैं और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि बहुत सारे कोर्सेज जो करवाए जाते हैं कंप्यूटर के, जिससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज में, ठीक है, गेमिंग में, जावा, इन सब चीज़ों में आगे जा रहे हैं। ये चीज़ नॉर्मल है, आपको स्कूल लाइफ में बिल्कुल भी कंप्यूटर का पता ही नहीं होगा। हाँ, ये बोल देते हैं टीचर्स तक, ये जो है बच्चों को सजेस्ट कर देते हैं मैट्रिक हो जाए उसके बाद शॉर्ट कोर्सेज कर लेना। हाँ, शॉर्ट कोर्सेज में सीख लेना, एमएस ऑफिस कर लेना। अभी भी कभी भी रिक्वायरमेंट आती है ना जॉब की, तो उसमें भी यही बताया जाता है कि भाई आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, आपको एक्सेल आना चाहिए। हमने भी ये ग्रेजुएशन के बाद जाके सीखा है, ठीक है। और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उसमें हमारा सब्जेक्ट था, तो उसमें क्या था कि हमें क्या करवाया जाता था कि भाई आप मैटलैब कर लो, आप C++ लैंग्वेज कर लो। यार मुझे तो बेसिक नहीं आती कंप्यूटर की, मैं C+ लैंग्वेजेस में कहाँ मर गया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमें अगर स्कूल से सिखाई जाएंगी तब जाके हमारे लिए आगे जाके आरामदेह होंगी ना। बेसिक ही नहीं थी ना, जब बात बेसिक की आती है, जब बेसिक ही नहीं है, हमारी बेसिक बिल्कुल डाउन है, तो हमें हाई लैंग्वेज जो लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर तो लैंग्वेजेस की जबान है, ठीक है, तो हम कैसे लैंग्वेजेस को फॉलो करेंगे, हम तो फेल हो जाएंगे ना। तो हर चीज जो है आजकल अपडेट हो रही है, हर टाइम के साथ हर नई नई चीजें आ रही हैं, तो हम जब तक पुरानी चीज़ों का हमें नहीं पता होगा तो हम नई चीज़ों तक कैसे पहुंचेंगे। तो व्यूअर्स, जैसे आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि पाकिस्तान की सादकाबाद की एक लड़की थी, तो वो कितनी वायरल हुई है, मतलब उसकी गूगल में डेटा एंट्री की जॉब लगी। तो आप खुद सोचें कि ऐसे क्रीम एक नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स बहुत मौजूद हैं जिनको सिर्फ हल्की सी गाइडलाइन की ज़रूरत है। और जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप मुझे बताएं कि आप किसी भी चीज़ में कमांड कैसे हासिल कर सकते हो। इट कांट बी पॉसिबल ऑन दैट टाइम। आपको बेसिक चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए उस चीज़ की। और जिस तरह पाकिस्तान की हम जीडीपी मिला लें और मतलब पूरे मुल्क की और इंडिया की एक जीडीपी मिलाएं हम सिर्फ आईटी डिपार्ट की, तो वो उससे बहुत ज़्यादा हाई है। और जब ये मैंने वीडियोस देखी तो मैं हैरान हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब कि एडोबी का और मतलब फॉर एग्जांपल गूगल और MSN दिस एंड दैट, तो मैं अली बाबा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, तो मैं शॉक्ड होता गया और सारे इंडियंस फेसेस आए सामने। तो मुझे इतना पता था नताशा पहले से कि वो आईटी में बहुत आगे, लेकिन सीईओज बने हैं, ओहो ज़बरदस्त, देख के खुशी भी। और हमारे पाकिस्तानी भी बहुत टैलेंटेड है यार। हम हैरान हुए और अपनी तरफ से थोड़ा परेशान हुए। तो आप लोग बताएं कि इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि पाकिस्तान को मज़ीद किस चीज़ पे काम करना चाहिए और किस चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे रह गया, गुजर गया, वो गुजर गया। अब हमें चाहिए, अब हम अपनी आने वाली जो जनरेशन है हम उसको इतना गाइड करें कि आने वाले 20-25 साल के बाद हमारा मुल्क एक अच्छी पोजीशन पे हो। अभी तो हम कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी नहीं होता है। जब अगर हम एक बीज को भी बोते हैं तो उसको भी एक अच्छा ताकतवर पेड़ बनने के लिए टाइम लगता है। तो वैसे अभी से हम काम स्टार्ट करेंगे तो ही आगे चल के हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक है नताशा, के जो हुआ सो हुआ, जो अब की बात है इन फ्यूचर उस पर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। माजी को नहीं बदल सकते, फ्यूचर और प्रेजेंट पे हमारा बिल्कुल वो है, हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी बता दें व्यूवर्स को। हम जो चीज़ें हमारी अपडेट जो हो रही हैं, हम उस चीज़ पे अगर काम करें, बेसिक चीज़ें सीखें। जो चीज़ हमारे सिलेबस से आउट है उस चीज़ को आउट ही कर दो बिल्कुल। जो चीज़ हमारी नहीं है काम की उसको छोड़ दो। जब हर किसी ने निकाल दिए, पूरी दुनिया ने निकाल के फेंक दिया, आप भी फेंक दो। और हमने उसको सजा के रखा हुआ है और कलरफुल बना के रखा हुआ है, फ्लॉपी डिस्क पढ़ लो, ये होता है, यूं होता है, यूं होता है। चीज़ों को सिलेबस से निकाल दें, जो चीज़ इन है, जो चीज़ अपडेट हुई है उस चीज़ पे काम करो ताकि हमें फ़ायदा हो। और प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होना चाहिए। थ्योरेटिकल हमारे यहाँ कॉपी रंगीन करा दी जाती है, ये स्कूल है। और जिसमें काम कम होगा वो घटिया स्कूल है, ठीक है, बेकार स्कूल है। और जिसमें काम बहुत ज़्यादा होगा, हो भाई 3-3 कॉपीज भरी हुई, ये पूरे कराची का टॉप स्कूल है। और बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं, सिर्फ काम कराना मकसद नहीं होता। जो चीज़ होती है, अगर आपको एक लाइन में पढ़ाई जाए, जी,
ज़्यादा होनी चाहिए और उसको प्रैक्टिकल वे में करना बहुत ज़रूरी होता है। तो व्यूअर्स बहुत मज़ा आया आज, हमने बहुत कुछ सीखा इस वीडियो से, उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो व्यूअर्स बहुत मज़ा आया आज की वीडियो में, हमने बहुत कुछ सीखा, आप लोगों ने भी सीखा होगा और हमने आईटी को लेके बहुत सारी चीज़ें सीखी और हमारा भी दिमाग खुला कि हमें भी अपनी जनरेशन्स को जो वेस्ट हो चुकी हैं, जो आने वाली जनरेशन है उस पर वर्क करना है, उनको स्टार्ट से ही। अगर कोई नहीं भी सिखाता हम खुद सिखाएंगे उन्हें, ठीक है, ताकि वो इन चीज़ों को फेस ना करें। ठीक है, और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अकबर मिर्ज़ा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले ये दोबारा से कहती जाऊँ, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस चीज़ पे बनानी चाहिए। कोई भी अच्छी बुरी बात लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आगे से हम ख्याल रखें, ताकि आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। थोड़ा सीखने की कोशिश, चलें सीख लेंगे। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।